Hello, my dear children. I hope you all are doing good. So, in this lecture, I'll be continuing our same lesson, which is chapter number 13, ways to multiply and divide. Okay, so we completed till question number 22, and we are going to start with our question number 23. So let's start, children. Question number 23 is, write a division fact for each problem and solve it. What does the answer mean? Okay, so what does this mean is, you have to write a division fact and you have to solve that division fact. Okay, and what does this answer mean? That is also they are asking. So here, children's first one is, arrange 112 chairs into rows of 9. Okay, so what are they asking is, 112 chairs are there. Okay, 112 chairs are there. Okay, and 112 chairs are there, and we have to arrange those 112 chairs in row 9. ठीक है, 9 rows बनाने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So these are the 9 rows, and यहाँ पे हम क्या करेंगे, chairs को arrange करेंगे. Okay, and total number of chairs are what? How many? 112. Okay, so like this we have to do. So division fact बनाना है हमें. So how are we going to make division fact is, 112 divided by 11. Okay, 112 divided by 11. And now what are you going to do? You will divide 112 divide, sorry, अब क्या करेंगे, डिवीजन फैक्ट लिखेंगे 112 डिवाइडेड बाय 11, एंड इसको डिवाइड करोगे और आंसर लिखोगे. मैंने यहाँ पे डिवाइड करके आंसर नहीं लिखा है, आप खुद फाइंड आउट करोगे एंड आंसर लिखोगे. ओके, डेसिमल में आंसर आएगा, यू हैव टू फाइंड इट डाउन. Okay, so next question is, children, next one is, arrange 800 erasers into piles of 3. Okay, so again, will be the division fact? Total number of eraser is 800, and कितने piles बनाने वाले हैं हम? 3 piles बनाने वाले हैं. So what are we going to do is, 800 divided by 3 we will do. Okay, so and you have to also divide it. Okay, sum divide करना है, 800 divided by 3, उसका आपको आंसर भी solve करना है. I'm not showing the answer because I had already taught a lot of ways to divide, and I had already taught division a lot of times. So this division you will do by your own. So question number 24 is, children, Rafiq rides on bicycle and travel 4 kilometer distance daily. Okay, Rafiq is a person, he rides a bicycle. ठीक है, और वो हर दिन 4 kilometer travel कर लेता है. Okay, so what is the question is, in 1 month he will travel dash kilometer. Okay, so I'll just explain you here. Give me a moment. Yes, so what is the question is, Rafiq is riding bicycle and he travels 4 kilometer daily. So how much he will travel in a month? Month में, in 1 month कितना वो travel करेगा? That is the question. So how will you know this? By, you know that how many days are in a month. Okay, there are 30 or 31, right? So we'll take 30. Okay, we'll take a month of 30, एंड एक दिन में 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में कितना ट्रैवल करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 4. Okay, I'll explain again. The question is, Rafiq is riding a bicycle. एक दिन में 4 किलोमीटर he travels. ठीक है, तो 1 मंथ में कितना ट्रैवल करेगा? 1 मंथ में दिन कितने होते हैं? एक दिन में 4 किलोमीटर्स, 1 मंथ में दिन होते हैं 30, है ना. 1 मंथ में 30 डेज होते हैं. सो हम क्या करेंगे, 4 kilometer multiply by 30. So 34 is what you will get, 120 kilometer. Okay, so in a month Rafiq will travel 120 kilometer, children. Okay, and next question is, just a minute. Yes, here we have the next question. In 1 year he will travel. Okay, so next question is, 1 year में how much is he going to travel? Okay, just a moment, children.
Yes. So now the question of B1 is, one in 1 year he will travel how much, how much distance. Okay. So 1 month में 30 days थे, and 1 year में we all know 365 or 366 days is there in a year, है ना. तो ये हमें पता है ऑलरेडी. सो हम अगेन डेज से कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट इन अ ईयर हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर. 365 ले लेते हैं बिकॉज दैट इज़ द ईजी नंबर, है ना. तो 365 डेज वी हैव इन अ ईयर. सो 1 डे में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है. तो 365 डेज में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा. 365 मल्टीप्लाई बाय 4 यू विल डू. सो इफ यू मल्टीप्लाई 365 बाय 4, लेट्स डू इट. 5 4 इज 20, है ना. 6 4 is what? 6 4 will be 24. 24 plus 2, 26. And then 3 4 is 12. And then 2 carry, so 13 14. 1460. So so in 1 year, Rafiq will travel 1460 kilometer, 1460. So that is you are going to write here. Next question is, if he travel 2 kilometer more per day, then he will travel डैश किलोमीटर इन अ मंथ. ठीक है, वो एक दिन में. अभी अब क्वेश्चन ध्यान से समझो. ओके. बिफोर ही यूज टू ट्रैवल 4 किलोमीटर इन अ डे. अब बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर और चले और वो ट्रैवल करेगा. मतलब ऑलरेडी वो 4 किलोमीटर पर डे ट्रैवल कर रहा है. तो अभी बोल रहे हैं कि और 2 किलोमीटर वो मोर पर डे ट्रैवल करेगा. तो एक महीने में कितना. अब वो टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है. 6 किलोमीटर. यू अंडरस्टूड. 4 किलोमीटर इज ही यूज टू ट्रैवल, है ना. 4 किलोमीटर. होल्ड ऑन. Okay. So 4 kilometer is 4 kilometer he travels in a day before. Now he is traveling 2 more kilometers. So 4 plus 2 कितना किलोमीटर हो जाता है. 6 kilometers. So 1 day, in 1 day he is traveling 6 kilometers. So in 1 month how much he is going to travel. So in 1 month में कितने days होते हैं. Already told you 30 days ले लेते हैं. So 30 days में कितना travel करेगा. 30 multiply by 6. Why 6? Because पहले तो 4 कर रहा था, बट अभी वो 2 किलोमीटर्स और ज़्यादा ट्रैवल करना है. टोटल 6 किलोमीटर्स पर डे ट्रैवल कर रहा है. तो एक महीने में 30 days है, तो 30 multiply by 6 you will do. You'll get the answer 180 kilometer. Okay. See here, 180 I have written. Next children, if he travel 12 kilometer in 1 day, he will travel dash kilometer in 6 months. Okay, so he is traveling 12 kilometer in 1 day. Okay, I'll just show you. Let me just rub this. Yes, so now the question is, he is traveling 12 kilometer one per day. And how much he will travel in 6 months. तो 6 month में days कितने होते हैं, that we have to calculate. Okay, so let's calculate month wise. ठीक है, month wise. First we will see Jan में कितने days होते हैं. We know it is 31. Then we will calculate Feb. The question is 6 month में कितना travel करना है. तो हम क्या करेंगे, 6 month ले लेते हैं. Jan to June ले लेंगे. Okay, okay, so Jan to June ले लेते हैं हम. And okay, so February may days we will take 28. And then March. Okay, March. Okay, March may days होते हैं 31. And then we have April में days होते हैं 30. And then May में days होते हैं 31. And then June में days होते हैं 30, है ना. Okay, so these are 6 months. This is 1 2 3 4 5 6 months हो गए. Jan में 31, Feb में 28, March में 31, April में 30, May में 31, June में 30. So इनका हम टोटल कर देते हैं to find out how many number of days we have. तो इनको आप ऐड कर दोगे, how much you will get. 8 9 10 11, है ना. 1 carry 1 year. So let's add it. 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18. Okay, so 181.
सो हमें हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज इन 6 मंथ इज, मैं दूसरा स्लाइड ले लेती हूँ. टोटल नंबर ऑफ डेज इन 6 मंथ, व्हाट हैव वी गॉट? 6 मंथ के डेज कितने होते हैं? 181. तो वी हैव 181 डेज. एंड 181 डेज अभी हमारे 6 मंथ में होते हैं. एंड वो एक दिन में कितना ट्रैवल कर रहा है? 12 किलोमीटर. तो 181 डेज में कितना ट्रैवल करेगा? 181 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, सो लेट्स डू इट. 1 2 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 1 carry, 6 below, 1 2 ज़ा 2, and then 1 carry, this 3. Here we will put a cross. 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, and then again 1 1 ज़ा 1. So 2 7 8 plus 3 11, 1 plus 1, here we will add 1 carry, 1 plus 1 2, 2172. 2172 is the answer. Okay, so in 6 months he will travel 2172 किलोमीटर. ठीक है. 6 मंथ में डेज कितने होते हैं वो हमें कैसे पता चला? हमने ऐड किया. ये देखो 6 मंथ को नंबर्स लिख के ऐड किया, 181 आया. सो हमने किया 181 इंटू 12. 12 क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है 12 किलोमीटर्स. Okay, so 181 multiplied by 2 will get 2172 answer. Okay, children, so next question. Question number 25. Question number 25 is, children, Henry has 90 stamps in his stamp book, 10 stamps on each page. There are dash pages full of stamps. Okay, so how, I'll just explain you here. I'll take a new slide. Okay, so now Henry is having 90 stamps. Total number of stamps he has is 90. ठीक है. Total number of stamps he has is 90, and he has 10 stamps on each page. मतलब 90 टोटल है एंड एक एक पेज में 10 स्टैम्प्स हैं. ठीक है, मतलब समझ आओ, वो ये एक स्टैम्प है समझो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एक पेज में इतने स्टैम्प्स हैं. तो ऐसे उनके पास 90 स्टैम्प्स हैं. तो आपका आंसर कैसे? तो क्वेश्चन इज देयर आर डैश पेजेस फुल ऑफ स्टैम्प्स. तो आपको कैसे पता चलेगा? यू विल डिवाइड. टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज 90 एंड पेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स यूज्ड इन ईच पेज इज 10. सो इफ यू डिवाइड 90 डिवाइडेड बाय 10 you will get the answer 9. So there are 9 pages full of stamps. Understood? I'll explain again. हेनरी के पास टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज 90 एंड उसने क्या किया है? 10 स्टैम्प्स हर एक पेज में चिपकाए हैं. तो आप क्या करोगे? 90 डिवाइडेड बाय 10 करोगे. 90 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो यू विल गेट द आंसर 9. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, next question is, let me just read. Okay, you get sit 4 kids in each of the 11 taxis. Total number of kids in taxis are. Okay, so again I'll take a slide and explain. Now you have 4 kids, children. ठीक है, and each of the 11 taxis. So total number of taxis is 11. 11 टैक्सीज हैं एंड हर एक टैक्सी में आपने कितने बच्चे बिठाए हैं? 4 बच्चे बिठाए हैं. तो टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 11 टैक्सीज हैं. एक टैक्सी में 4 बच्चे हैं. तो 11 टैक्सीज में कितने होंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 4. 11 multiplied by 4 is 44. So 44 students are there in all. तो आप यहाँ पे लिख दोगे 44. Next question is, if there are 10 eggs in each carton, total number of eggs in 5 cartons are. Okay, so next this question is, okay, 10 eggs. We have 10 eggs. We have total 10 eggs in each carton. मतलब एक कार्टन में, कार्टन मीन्स अ बॉक्स समझ जाओ. तो एक बॉक्स में 10 एग्स हैं एंड हमारे पास टोटल कार्टन्स कितने हैं? 5 कार्टन्स हैं. एक बॉक्स में 10 एग्स हैं एंड बॉक्स कितने हैं? 5 बॉक्सेस हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? तो 10 5 विल बी 50. सो 50 एग्स आर देयर इन ऑल. आप यहाँ पे लिख दोगे 50. Next question is, Shelly, Roma and Tom divided evenly 36 cherries. Each one get dash cherries. Okay, again I'll explain. Okay, there are 3 people here. 3 people are Shelly. One is Shelly, the other is Roma, and the third one is Tom. They have
divided evenly 36 cherries. मतलब total number of cherries were how much? 36. 36 cherries थे and उन तीनों ने equally divide कर दिए. ठीक है. अब 3 लोग हैं तो एक एक को कितने cherries मिले? That is the question. Total number of cherry is 36. है ना? Total number of cherry is 36. And कितने लोग हैं? 3 लोग हैं. तो हम करेंगे divide 36 by 3. तो 36 by 3 डिवाइड करोगे. यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो एंड सी 36. 3 1 ज़ा 3, 3 minus 3 0, 6 इधर, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 0. ओके, सो आंसर कितना आया आपका? 12 आया. देखा, 12 3 ज़ा 36 होता है, ये भी आपको पता है. सो 36 डिवाइड बाई 3 विल बी 12. सो ईच वन विल गेट 12 चेरीज. समझ गए? 36 चेरीज थे, 3 लोग थे, तो सब तीनों को मिले कितने चेरीज? सबको, हर चेली को, रोमा को एंड टॉम को, सबको 12 चेरीज मिल गए. ओके, आप यहाँ पे लिखेंगे 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल यू हैव इन 7 वैन्स. Okay, dash people you have in 7 vans if each one has 5 people in it. Okay, I'll explain again in a slide. Understand the question. The question is you have dash number of people. आपको नहीं पता कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पीपल है, ये आपको फाइंड आउट करना है. बट आपको क्या पता है कि आपके पास 7 वैन्स है, 7 गाड़ियाँ हैं एंड 7 गाड़ियों में 5 लोग हैं. मतलब हर 7 टोटल गाड़ियाँ हैं एंड एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं. तो 7 गाड़ी में कितने लोग बैठे होंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 5. 7 5 इज 35. तो आप इस बॉक्स में 35 आंसर लिख दोगे. You understood? Total number of vans are 7 in number and each van has 5 people in it. So how much people are there in total? 7 multiplied by 5, that was 35. Okay. Next question is Manish puts 12 stamps per page in his stamp book and he has 8 pages full of stamps. Total number of stamps he have. Okay, I'll explain again here. Okay, so here Manish puts 12 stamps. Okay, Manish is putting 12 stamps. 12 stamps per page. ठीक है, हर एक पेज में 12 स्टैम्प्स मनीष चिपका रहा है उसके बुक में. एक पेज में 12 स्टैम्प्स हैं एंड उसके पास टोटल पेजेस कितने हैं? 8 पेजेस हैं. 12 स्टैम्प्स वो अपने एक पेज, स्टैम्प बुक है उसके पास, एक पूरी बुक है एंड उसमें पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं. तो एक पेज में वो 12 स्टैम्प्स चिपका रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस उसके पास कितने हैं? 8 हैं. समझ गए? ओके, सो आप क्या करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि स्टैम्प्स टोटल कितने हैं? 12 स्टैम्प्स हर एक पेज में है, टोटल 8 पेज हैं, तो 12 इंटू 8, 12 8 ज़ा 96. सो 96 स्टैम्प्स है पूरे बुक में. ओके चिल्ड्रंस, आई होप यू अंडरस्टूड. सो हियर यू विल राइट 96. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. ओके, question number 26 is children complete the following bill. Okay, so here we have to complete the bill. So here what is there? Complete the following bill. Bill is given that is incomplete. Okay, so we have to complete that bill. So we have first item and how much, what all items we have? Shampoo, toothpaste, baby oil and sugar. ओके, एंड क्वांटिटी यूज्ड इज 2 क्वांटिटी. 2 शैम्पू लिया है, टूथपेस्ट 3 लिया है, बेबी ऑयल 1 लिया है एंड शुगर 3 लिया है. सो वो एंड रेट बता दिया है. ठीक है, शैम्पू एक बॉटल का प्राइस है 55. टूथपेस्ट एक टूथपेस्ट, ओके, पर पेस्ट मीन्स एक पेस्ट का प्राइस है 30. एंड बेबी ऑयल 1 बॉटल इज़ 55. शुगर 1 kg इज़ ₹20. ओके, सो अभी आपको यहाँ पे टोटल प्राइस आपने खुद सॉल्व करना है. आप कैसे करोगे? आप देखो, क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, रेट क्या है? 1 बॉटल की प्राइस है 55 और आपने लिया कितना है? 2. समझ रहे हो? रेट यहाँ पे जो दी है वो एक एक चीज़ की दी है. अगर शैम्पू है तो शैम्पू की एक बॉटल का प्राइस है ये. टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट की एक बॉक्स का, एक टूथपेस्ट का प्राइस है ये. बेबी ऑयल का एक बॉटल का प्राइस ये है. शुगर का 1 kg का प्राइस ये है. तो अब हमने जितना लिया है उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर चिल्ड्रन, ओके,
सो हियर शैम्पू की बात करते हैं पहले। तो शैम्पू एस लिख रही हूँ मैं सिर्फ। तो शैम्पू लिया है हमने कितना, 2 क्वांटिटी लिया है। एक शैम्पू की बॉटल का प्राइस था 55 और लिया कितना है हमने, 2। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 55 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, यू विल गेट आंसर 110। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 110। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। ओके, टूथपेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी। ओके, टूथपेस्ट लिया है हमने 3। ओके, एंड एक टूथपेस्ट का प्राइस है 30। तो टोटल प्राइस कितना हुआ, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, हमें मिलेगा आंसर 90। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90। सेम वे चिल्ड्रन, बेबी ऑयल। ओके, I'll just rub this. ओके, नाउ बेबी ऑयल। अब बेबी ऑयल के लिए मैं लिख रही हूँ B.O। अब बेबी ऑयल का प्राइस, बेबी ऑयल एक ही लिया है एंड एक बॉटल का प्राइस है 55। ठीक है, एक ही बॉटल लिया है ना, तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 55 वन सा 55 वन सा इज 55। तो बेबी ऑयल की प्राइस 55 ही रहेगी, हम यहाँ पे लिख देंगे 55। नाउ शुगर। शुगर हमने लिया है 3 kg। मैं यहाँ पे शुगर लिख देती हूँ। ओके, शुगर हमने लिया है 3 kg एंड 1 kg का प्राइस है 20। तो 3 kg का प्राइस कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 60। ओके, तो अब हमें प्राइस मिल गया है। ठीक है, बाय बेबी ऑयल का 55, शुगर का 60, टूथपेस्ट का 90 एंड शैम्पू का 110। तो हम क्या करेंगे, सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो हमने अभी सॉल्व किया। अब इसका टोटल, इनको हम ऐड करेंगे, इनको प्लस करेंगे एंड आंसर हमें मिलेगा 350। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज, जस्ट अ मिनट। Okay, so question number 27 is, fill in the blanks on the basis of the given statement. Okay, so now here children is, the daily requirements of calorie for 8-year-old boy is 1500 calorie. ठीक है, अब हमें क्या पता चल रहा है कि 8 साल के बच्चे को एक दिन में कैलोरीज कितनी देनी है, 1500 कैलोरीज देनी है। सो टोटल कैलोरी नीडेड फॉर 1 मंथ इज। तो ठीक है, हमने पहले जैसे क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 24, उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 27 भी करना है। ठीक है, एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, 1500। तो 1 मंथ में कितनी चाहिए होगी, 1 मंथ में डेज कितने होते हैं, 30। 1 डे में 1500, तो 30 डेज में कितने चाहिए होंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन अ स्लाइड। Okay, so again I'll tell you that in 1 day the calorie required is 1500, है ना। एक दिन में कैलोरी हमें कितनी चाहिए, 1500 कैलोरी चाहिए। एंड वो पूछ रहे हैं कि 1 मंथ में कितनी चाहिए। 1 मंथ में डेज कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे हम, एंड 15 3 हमें पता है, 15 3 इज 45। कितने जीरोज रिमेनिंग है, 1 2 एंड 3। तो 3 जीरोज ऐड कर दो, मल्टीप्लाई हो गया आपका। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 45,000। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1500 मल्टीप्लाई बाय 30, 45,000। ओके, नेक्स्ट इज B1 चिल्ड्रन। बी क्वेश्चन इज, टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर 8 मंथ इज। 8 महीने में कितने, अब 8 महीने में डेज कितने होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके ओके, लेट मी सी, यहाँ पे डे वाला मैंने रब किया है क्या, नहीं, डे वाला स्टिल देयर। ओके, सो यहाँ पे हमने 6 मंथ का कैलकुलेट किया था। 6 मंथ में डेज कितने हुए हमारे बच्चों, 181, है ना। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 मंथ था। 6 मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज थे 181। अब हमें 8 मंथ का चाहिए, तो मतलब 181 जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, जुलाई एंड अगस्त, हमने 6 मंथ ऑलरेडी किया है, अभी 8 मंथ का चाहिए, तो 2 मंथ मोर। तो जून अभी ये हो गया है। ओके, हम यहीं पे कंटिन्यू कर लेंगे। ओके ओके, सो अब जून हो गया 181। अब जुलाई में कितने डेज होते हैं, जुलाई में हमारे डेज होते हैं 31। ओके,
जून में 30 थे तो जुलाई में हमारे डेज होते हैं 31 एंड अगस्त में हमारे डेज होते हैं अगेन 31। जुलाई एंड जून अगस्त में 31 डेज होते हैं। तो ये कितने हो गए, हमें करना है 181 प्लस 31 प्लस 31, ठीक है 181 प्लस 31 प्लस 31। तो कितना आएगा आंसर आपका 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख दो, 8 9 10 11 12 13 14, 1 कैरी एंड देन 1 प्लस 1 2, 243 डेज। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे 6 मंथ का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, जैन टू जून। अब हमें 8 मंथ में डेज कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो जुलाई में 31 होते हैं, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं। सो हमने क्या करना है 181 प्लस 31 प्लस 31, जुलाई एंड अगस्त का ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ डेज वी गॉट इज 243। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 243, है ना। Okay, so total number of days is 243 and okay. In one day we need the calorie, not we, 8-year-old child needs a calorie of 1500 calorie, okay, one day में। तो 243 डेज में उसे कितने कैलोरीज चाहिए होंगे, 243 वाई 243 बिकॉज 8 मंथ में 243 डेज होते हैं। सी यहाँ पे 243 आया हमारा, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 243 करना है। ओके, सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 243 आप कर सकते हो, आपका आंसर आएगा 3 लाख। आई एम जस्ट गिविंग द आंसर राइट स्ट्रेट अवे, 3,64,500। आप खुद से करके देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, 1500 मल्टीप्लाई बाय 243, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, so 3,64,500 will be your answer. Okay, and here you will write 1500 multiplied by 243, answer will be 3,64,500. see, I have written over here. Last question is, if due to illness calorie requirement reduced to 800 calorie, then for 1 year calorie needed is, okay, सो मतलब अभी यहाँ पे क्या है, इलनेस मतलब बीमारी हो गई, ठीक है। तो बीमारी के वजह से अभी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो हो गई है वो 800 हो चुकी है, मतलब अभी इलनेस हो गई है, कमज़ोरी आ चुकी है। अब हमें ज़रूरत कितनी कैलोरी की है, सिर्फ 800 कैलोरी की है, ठीक है। एक दिन में 800 कैलोरी की ज़रूरत है एंड तो 1 ईयर में कितनी कैलोरी चाहिए, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो 800 1 डे में है एंड 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, वी ऑल नो 365, ठीक है, 365 और 366, है ना। तो 365 ले लेते हैं। 1 डे में 800 कैलोरी चाहिए, 1 ईयर में डेज कितने हैं 365, 800 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2,92,000। ओके, 2,92,000। आप खुद से करके भी देख लीजिएगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 800। ओके, आई विल जस्ट गिव मी अ मोमेंट। yes, 2,92,000 is the same answer. Okay, I just solved it, यही आंसर आ रहा है। okay, so that's all children, 28 29 30 31, this question is very easy, you can try by yourself. In our next lecture we'll finish this lesson. Okay children, you will understand these questions, you will have to pause the video, read the question and again and listen to my explanation again, and you will understand. These are very simple questions. Okay, so by our next lecture we will be finishing with this chapter. Okay children, so take care of yourself, see you in next lecture.